Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss section 164 of Criminal Procedure Code 1973, which is dealing with confession which may be recorded by the magistrate. Confession recorded by the magistrate. We will discuss under what circumstances magistrate can record a confession under section 164. What will be the procedure to record a confession under section 164 we will discuss under this particular lecture. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 164 सीआरपीसी का, जो कि मैजिस्ट्रेट को पावर देता है कन्फेशन रिकॉर्ड करने का। उसका प्रोसीजर क्या होगा कन्फेशन रिकॉर्ड करने का, किस तरीके से कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होना चाहिए, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Section 164 we will discuss in this particular lecture, confession recorded by magistrate. So section 164 of CRPC deals with recording of confession and statement. Section 164. So the confessional statement recorded under this section are substantive evidence. So whenever the magistrate recorded a confession under section 164 of CRPC, it will be a substantive piece of evidence against the accused person. जब कभी भी सेक्शन 164 में मैजिस्ट्रेट अगर कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में सब्सटेंटिव एविडेंस कहलाएगा। बट a non-confessional statement recorded under this section is not a substantive evidence and it can be used for corroborating and contradicting the witness making such statement in a trial. But suppose if the accused made a non-confessional statement, it will not be a substantive piece of evidence, but it may be used for corroborating and contradicting purpose. तो जो confessional statement है accused का सेक्शन 164 में अगर रिकॉर्ड होता है तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कहलाएगा। नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं कहलाएगा, बल्कि वो सिर्फ कोलैबोरेशन के लिए, सपोर्ट के लिए या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, अगेंस्ट में जाने के लिए यूज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। Subsection 1 of section 164 deals with, provides that a metropolitan magistrate or a judicial magistrate, whether or not he has jurisdiction in the case, may record a confession or a statement. So who is having a power to record a confession that is mentioned under subsection 1 of section 164. So any metropolitan magistrate or a judicial magistrate, whether or not he has a jurisdiction in the case, may record a confession or a statement. तो कौन कर सकता है? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कर सकता है या और कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उनका जुरिस्डिक्शन हो या जुरिस्डिक्शन ना हो, वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं सेक्शन 164 में। सो कन्फेशन or statement under this section can be recorded in course of an investigation or any time afterwards, but before the commencement of inquiry or trial. So it is an essential part of section 164 कि confession or statement under this section, under section 164 of CRPC, the confession will be recorded only during the investigation and before inquiry or trial. So section 164 में जो confession record होगा वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही कन्फेशन रिकॉर्ड होगा, इंक्वायरी और ट्रायल के पहले। सो इंक्वायरी और ट्रायल के पहले की जो स्टेप होती है वो स्टेप होती है इन्वेस्टिगेशन। तो सेक्शन 164 में जो कन्फेशन रिकॉर्ड होगा वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही रिकॉर्ड होगा। नाउ सबसेक्शन 2 डील्स विद वार्निंग टू द अक्यूज्ड. So, where recording of confession is continued or postponed to another day, a fresh warning is deemed necessary before recording the confession. So, whenever the magistrate is recording a confession of accused person under section 164 of CRPC, it will be the duty of that magistrate to warn the accused that
you are not bound to make a confession, and if you make this confession will be used against you as a piece of evidence and you will be punished on the basis of this confession. तो जब कभी भी मैजिस्ट्रेट अगर कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा होगा किसी अक्यूज्ड पर्सन का, तो सब सेक्शन 164 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, मैजिस्ट्रेट को वार्निंग देना पड़ेगा अक्यूज्ड को कि भाई तेरे पे बंधन कारक नहीं है ये कन्फेशन देना, और अगर तू कन्फेशन देगा तो ये कन्फेशन तेरे अगेंस्ट में यूज होगा और हो सकता है कि ये कन्फेशन के बेस पे तुझे सजा भी होगी। ऐसी वार्निंग देना कंपलसरी है। और फॉर एग्जांपल अगर कन्फेशन एक आज शुरू हुआ और कल भी अगर कन्फेशन शुरू है, कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है कल भी, तो कल फिर से एक फ्रेश वार्निंग देना पड़ेगा कन्फेशन रिकॉर्ड करने के पहले। So in Mahabir Singh versus State of Haryana, court observed that where the magistrate fails to explain to accused that he was not bound to make the confession and that if he did so, such confession might be used as evidence against him, that confession so recorded cannot be टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो महावीर सिंह व स्टेट ऑफ हरियाणा में स्पेशली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को वार्निंग नहीं देता है, वार्निंग दिए बगैर अगर उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करता है तो वो कन्फेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। और तो वार्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वार्निंग देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। वार्निंग दिए बगैर अगर मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो वो कन्फेशन अक्यूज्ड के अगेंस्ट में यूज नहीं होगा। Subsection 3 of section 164. If at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate state that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. So suppose if before recording the confession, if the accused deny, not willing to make the confession, अगर वो कहता है कि मुझे confession नहीं देना है, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन पुलिस कस्टडी। तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में नहीं देगा, पुलिस कस्टडी में नहीं दे सकता है। तो अगर कोई कन्फेशन देने के लिए कोई अक्यूज्ड आता है, मैजिस्ट्रेट उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है और कभी भी अगर वो कन्फेशन के दौरान वो ये कहता है कि मुझे कन्फेशन नहीं देना है, तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट उस अक्यूज्ड को पुलिस के कस्टडी में नहीं दे सकता। सबसेक्शन 3। Now subsection 4. Any such confession shall be recorded in the manner provided in section 281 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record. तो जब कभी भी confession record करेगा तो वो confession magistrate section 281 के जब किसी रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज का एग्जामिनेशन का जो रिकॉर्ड होता है उसको कैसा रिकॉर्ड करता है, उसी तरीके से मैजिस्ट्रेट कन्फेशन भी रिकॉर्ड करेगा उस अक्यूज्ड का, और कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद अक्यूज्ड की सिग्नेचर ली जाएगी उस कन्फेशन के नीचे एंड द मैजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड। और मैजिस्ट्रेट एक मेमोरेंडम करेगा मैजिस्ट्रेट उस रिकॉर्ड के नीचे। और मेमोरेंडम क्या रहेगा, मैजिस्ट्रेट मेमोरेंडम में ये लिखेगा कि आई हैव गिवन द वार्निंग टू द अक्यूज्ड पर्सन दैट यू आर नॉट बाउंड टू मेक दिस स्टेटमेंट एंड इफ यू मेक दिस स्टेटमेंट इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू एंड यू विल बी पनिश्ड ऑन द सोल बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्फेशन। तो मेमोरेंडम में क्या लिखेगा कि मैंने अक्यूज्ड को वार्निंग दिया कि तू कन्फेशन देने के लिए बंधन कारक नहीं है, और अगर कन्फेशन देगा तो ये तेरे अगेंस्ट में यूज होगा और तुझे पनिशमेंट भी हो सकती है। उसके बाद भी उसने कन्फेशन दिया और मेरे हिसाब से उसका कन्फेशन वॉलंटरी है, ऐसा मैजिस्ट्रेट मेमोरेंडम देगा उस कन्फेशन के नीचे और मैजिस्ट्रेट की सिग्नेचर रहेगी। नाउ सेक्शन 164 सब क्लॉज 5. Any statement other than a confession made under subsection 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded. अगर नॉन कन्फेशनल है या कन्फेशन के अलावा अगर कोई स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है उस अक्यूज्ड का, तो वो जिस तरीके से दूसरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, मैजिस्ट्रेट को जैसा लगा उस तरीके से मैजिस्ट्रेट उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। और मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है तो मैजिस्ट्रेट उसको कसम भी खिलाएगा, ओथ भी एडमिनिस्ट्रेट करेगा और उसके बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। नाउ सबसेक्शन 5A. As soon as
the crime of rape is brought to the knowledge of the police officer, he is duty bound to take the victim to the nearest judicial magistrate for recording her statement. The victim approached the court for recording her statement being distressed and aggrieved with the attitude of the investigating agency. Thus, it is the duty of the magistrate to record her statement. Section 164(5)(a). As soon as the crime of rape is brought to the knowledge of the police officer, he is duty bound to take the victim to the nearest judicial magistrate. जब कभी भी पुलिस ऑफिसर के नॉलेज में ये आया कि रेप का ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि उस विक्टिम को, रेप का ऑफेंस जिस विक्टिम के अगेंस्ट में हुआ, उसको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए ले जाया जाए. द विक्टिम अप्रोच द कोर्ट फॉर रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट बीइंग डिस्ट्रेस एंड एग्रीव्ड with the attitude of the investigating agency, that it is the duty of magistrate to record her statement. तो कभी अगर विक्टिम डायरेक्टली अप्रोच होता है मैजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, उस सिचुएशन में अगर विक्टिम डायरेक्टली अप्रोच होता है मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहेगी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की. सबसेक्शन 6, the magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried. तो अगर मैजिस्ट्रेट, अगर दूसरा कोई मैजिस्ट्रेट अगर कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, तो वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद वो मैजिस्ट्रेट उस कन्फेशन को ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करेगा जो वो केस की इंक्वायरी कर रहा है या जो वो केस का ट्रायल देख रहा है, उस मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा. सपोज अगर मैं एक मैजिस्ट्रेट हूं, मैंने कन्फेशन रिकॉर्ड किया अक्यूज्ड पर्सन का और वो केस का जुरिस्डिक्शन किसी और मैजिस्ट्रेट के पास है, तो मैं उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करने के बाद वो कन्फेशन उस मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करूंगा. नाउ क्वेश्चन, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन जेएमएफसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, statement of a witness recorded under section 164 of criminal procedure code can be used for contradiction only, for corroboration only, both for contradiction and corroboration, neither for contradiction nor for corroboration. तो we have already discussed कि अगर सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन के भी लिए यूज हो सकता है, कोराबोरेशन के भी लिए यूज हो सकता है. थर्ड ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर. Now, Uttarakhand Judicial Examination 2019. Who may record confession under section 164 of CRPC? Any judicial magistrate having jurisdiction only, any judicial magistrate not having jurisdiction only, any metropolitan magistrate not having jurisdiction only, all of these. तो हमने ऑलरेडी देखा है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड कर सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन इन द केस, जुरिस्डिक्शन रहो या ना रहो, तो सब रिकॉर्ड कर सकते हैं कन्फेशन को. ऑल ऑफ दिस इज अ करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस. 2018 उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, एट व्हाट स्टेज ऑफ क्रिमिनल केस कन्फेशन स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन अंडर सेक्शन 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कुड बी रिकॉर्डेड? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी, ड्यूरिंग ट्रायल, एट एनी स्टेज ऑफ द केस. तो हमने देखा कि यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर द सेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन. सो कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 कैन ओनली बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. तो करेक्ट आंसर इज ए. 2014 उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन, which of the following is not an essential procedural requirement of section 164 of code of criminal procedure? Warning to the accused, confession to be made voluntarily, recording of statement in presence of advocate of the accused, memorandum at the foot of confession. तो अगर हम देखें तो वार्निंग भी देना जरूरी है, कन्फेशन वॉलंटरी होना जरूरी है, मेमोरेंडम भी होना जरूरी है कि हमने उसको वार्निंग दी है, ये मेमोरेंडम. बट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ अक्यूज, अक्यूज के एडवोकेट के प्रेजेंस में कन्फेशन रिकॉर्ड होना ऐसा बिल्कुल भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड. सो दिस इज द कन्फेशन ऑफ accused under section 164 which can be recorded by the magistrate. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.